ابھی کچھ دیر پہلے پارلیمنٹ میں خطاب کرنے کے دوران بتایا کہ 8 مارچ کو اسکول کھلیں گے. کچھ آگے جو اپڈیٹس ہیں اس سے بات کریں گے، لیکن بغیر وقت ضائع کیے آگے بڑھتے ہیں آغا سید علی موسوی کے پاس. بہت شکریہ. اور زیادہ خبریں چونکہ آج پیش نہیں کر پائیں گے کیونکہ وقت جو ہے اس میں قلت ہے، اور بہت خاص جو ہے وہ چند خبروں کو ہم نے اس میں جو ہے وہ چوز کیا ہے، جو کہ بہت ہی ڈیولپمنٹ ہے. اور انٹرنیشنل اگر کینوس کے اوپر دیکھا جائے، جو امت مسلمہ کے حوالے سے جن چیزوں کو ہم روز اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک بڑی پیش رفت ہے. یمن میں جو ہے وہ حوثیہ کی پیش قدمی جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور مارب جو شہر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ منصور الہادی سے متعلق جو ایک جیل کہی جاتی تھی، اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہے. وہاں کی جو انصار اللہ کی تحریک ہے حوثیین کی، اور انہوں نے جیل کے اوپر قبضہ کرتے ہی، اس پر کنٹرول حاصل کرتے ہی تمام قیدیوں کو جن کو قید کیا گیا تھا، اب یہ نہیں معلوم کہ وہ کون لوگ تھے، کیا ہے، جس کی اتنی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، ان سب کو بہرحال رہا کر دیا ہے. اور ان کی پیش قدمی جو ہے وہ مارب شہر کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر کافی واویلا ہو رہی تھی کہ ان کو پیش قدمی روکی جائے اور یہ کیا جائے اور وہ کیا جائے، مگر وہ کسی سے کنٹرول نہیں ہوئے. وہاں پر پورا سعودی اتحاد، اس کے تمام شرقی و غربی جو جتنے بھی الائنز ہیں وہ منہ تکتے رہ گئے ہیں، اور سب نے دیکھا کہ جو مفلوج الحال ترین ملک ہے یمن، وہ ان سے نہ کل کنٹرول ہوا تھا نہ آج کنٹرول ہوا ہے، اور اب وہ مارب کی طرف جو کہ منصور ہادی کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا تھا، اس کو وہ رونتے ہوئے جو ہے وہ اندر داخل ہو گئے ہیں. سعودی عرب یمن میں جو ہے وہ فتح حاصل نہیں کر سکتا. جواد ظریف صاحب کا کہنا ہے، ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ یمن میں کسی صورت بھی جو ہے وہ سعودی عرب کو فتح حاصل نہیں ہوگی. ایرانی وزیر خارجہ نے اتوار کے روز لبنانی ٹی وی چینل المنار سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو ہے وہ کسی صورت بھی آپ فتح حاصل نہیں کر سکتے، اور وہ جو کامیابی حاصل کرے جو فوجی طریقے سے حاصل وہاں پر نہیں ہو سکتی، جو کہ مذاکرات کے ذریعے سے جو ہے وہ بات چیت آگے بڑھائی جا سکتی ہے. انہوں نے بتایا کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو اس نے گویا خودکشی کا ارادہ جو ہے وہ کر لیا. اور انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے پڑوسیوں نے اسرائیل کے تنازع کو اپنے علاقے میں گھسیٹنے کی اجازت دینے کی غلطی کی، اور یہ ریاست جلد ہی ممالک سے سیکیورٹی کو تباہ کر دے گی اور وہ دفاع بھی نہیں کر سکیں گے. یہ ان کی ایک ہفتے وار جو بریفنگ تھی، جس کے اندر انہوں نے یہ تمام چیزوں کو کہا کہ جو معاملات کہے جاتے ہیں بعض روز جو ہے وہ ایک نیا شوشہ ہوتا ہے کہ جی اتنا بجٹ مختص کر دیا اور ایران پر حملہ ہو رہا ہے، وہ اس کو بار بار کہہ چکے کہ یہ ساری جو ہے کہ وارفیئر کی ایک پروپیگنڈا کا ایک طریقہ کار ہے. اپنی جو لوگ اکتا گئے ہیں، جو وہاں سے چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، ان کو روکنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں، ہم بڑے خوشحال ہیں، مگر اندر کی سچویشن جو ہے وہ بہت خراب ہے. اور چاروں طرف جتنی بھی چالیں انہوں نے چلی تھی، پوری دنیا بھر سے تکفیریوں کو لائے تھے اور اپنی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تھا. تقریباً کچھ 4-4.5 لاکھ لیٹ ان کی جو ہائیلی ٹرینڈ لوگ تھے شام کے اندر، وہ سب مارے گئے، واصل جہنم ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل اور زیادہ خطرے میں آ گیا، کیونکہ وہ خود ان کے ہائی آفیشلز کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے ایک ڈرونا خواب ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہماری سرحدیں ایران کے ساتھ جا کے لگ گئی، کیونکہ ایران کی جو سرکاری مشیر ہیں اور جو ان کی مختلف تنظیمیں ہیں جو کہ انقلاب کے وطن سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہیں، ان کا جو ہے وہ بارڈر جا کر شام سے اور گولان کے ساتھ لگ رہا ہے، جو کہ ان کے لیے ایک ڈرونا خواب بنتا چلا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. اور قومی نجات یمن کی جو حکومت کی وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ یمن کی فوج انصار اللہ کے جوانوں نے مارب شہر کے ایک جیل پر کنٹرول حاصل کر کے 9 قیدیوں کو فی الفور رہا کیا، جنہیں سعودی اہلکار سعودی حکام کی تحویل میں دینا چاہتے تھے. وہاں پر بھی جو ہے وہ گھمسان کی جنگ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور انصار اللہ کی مسلسل جو ہے وہ پیش قدمی کی وہاں سے خبریں آ رہی ہیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ پابندیاں ہٹائے بغیر خلیج فارس میں عسکری مسابقت کے بجائے علاقائی گفتگو کی حوصلہ افزائی کی جائے. خلیج فارس کے ممالک میں امریکی پراکسی جنگوں کا خطرہ موجود ہے، یہ کہنا ہے سینیٹر کرس مورفی نے. کہا کہ جمعے کو انہوں نے فورن افیئرز کے ایک پروگرام میں اس یادداشت کو شائع کر کے خلیج فارس کے علاقے میں امریکی رویے کی اصلاح کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ نہ ختم ہونے والی عسکری مطابقت کو چھوڑ کر بات چیت کے حوصلہ افزائی کی جائے. یہاں سے جب
नाज़रीन जब ये बात होती है ना कि जब बातचीत करें और अमेरिका जैसा एक सर्कस जब ये बात करे, जिसको आपने देखा कि जिसने चढ़ाई कर दी अफगानिस्तान के ऊपर, किस भयानक तरीके से वहां पर जो है वो बमबारी हुई, इवन बगदाद के ऊपर, यानी कि फौजी आदाफ को निशाना तो बनाया ही बनाया, उसके अलावा इस तरह से वहां पर बमबारी की कि बाकायदा सिविलियन आदाफ जो है वो भी जद में आए। फिर वहां पर फ्रेंडली फायरिंग के नाम पर कितने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया। जब एक ऐसी मुजोर रियासत कहे कि मुज़ाकरात करने चाहिए, तो आप समझ जाएं कि मद्दे मुकाबिल मजबूत हो चुका, नाकाबिल तस्खीर हो चुका। अब उससे फौजी फौजी महाराज आ रही मुमकिन नहीं है, तो रवैया बदल रहे हैं, इंसानियत के चैंपियन बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बातचीत कर लेते हैं। बातचीत अफगानिस्तान में भी की जा सकती थी, बातचीत इराक में भी की जा सकती थी, बातचीत लीबिया में भी की जा सकती थी, बातचीत यमन में भी की जा सकती थी। आपने वहां तो बेतरीक हमला कर दिया, मगर यहाँ पर चूंकि आपका बस ईरान के ऊपर नहीं चल रहा और अब आप देख रहे हैं कि मद्दे मुकाबिल इतना मजबूत हो चुका कि आपके सारे फौजी अड्डों को जो है वो उसके जद पर है, तो आप कहते हैं कि जी बातचीत कर ले। बहरहाल बातचीत का ऑप्शन महजब दुनिया के अंदर हमेशा खुला रहता है और उसको हर जगह से वेलकम किया जाता है और किया जाना भी चाहिए। तो हालात इस तरफ करवट ले रहे हैं कि अब फौजी मुहाजाराई से जो है वो खतराया जा रहा है ईरान के साथ, और बातचीत पर जो है वो जोर दिया जा रहा है। खास खास खबरें नाज़रीन जो है वो आज हमारे जो है उम्मत मुस्लिमा के हवाले से अगर देखा जाए तो उसके उफक पे इतनी ही थी, और इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे अय्याम अभी आएंगे तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया मौसी भाई। तो नाज़रीन, अपडेट्स जो उम्मत मुस्लिमा के हवाले से मौसी भाई ने पेश की, और कुछ खबर जो यहाँ से ही आगाज करते हैं यूके की खबरों में। आज जो अमवात हैं वो 178 हैं, और अफसोस है कि इतनी कीमती जानें अभी तक जा रही हैं। लेकिन हुकूमत के जो इकदाम हैं, आज बोरिस जॉनसन ने कुछ हाउस ऑफ कॉमन्स में तकरीर भी की, सवाल जवाब का सेशन भी रहा, और उसमें उन्होंने कुछ स्केड्यूल दिया है। 8 मार्च को जो स्कूल्स बंद थे वो अब दोबारा खुलने जा रहे हैं। उसके लिए कुछ इकदाम यकीनन उनको खोलने से पहले जो स्टाफ है वहां पे, या जो भी सिलसिला कार होगा स्कूल के अंदर, टेस्ट जो हैं वो कैसे सरंजाम दिए जाएंगे। तो 8 मार्च को स्कूल खुलेंगे। कुछ आउटडोर एक्टिविटीज या मिलने मिलाने के हवाले से छूट 29 मार्च की डेट है। फिर 12 अप्रैल को कुछ अहम दुकानें या वो जो हेयर ड्रेसेस या इस किस्म के जो मामलात थे वो भी खुलेंगे। फिर 17 मई और 21 जून ये एक तारीख दी है। और दूसरी तरफ वैक्सीनेशन के हवाले से जो सिलसिला है वो भी जारी है। कुछ सवालात जो इस वक्त पार्लियामेंट में बोरिस जॉनसन से पूछे गए, और अच्छे एमपीज उनसे पूछ रहे थे। एक तो वैक्सीनेशन, वेकफील्ड के हमारे कोई एमपी थे, इमरान, वो ये कह रहे थे कि जो हमारी कम्युनिटी है, खासतौर पे हमारे जो अफ्रीकन निजात जो कम्युनिटी है, ये एशियन जो कम्युनिटी है, उसमें वैक्सीनेशन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो उसको खत्म करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। तो वो बोरिस जॉनसन भी कह रहे थे कि जो कम्युनिटी के खास खास अफराद हैं, अहम लोग हैं, वो भी मैसेजेस दे रहे हैं और लोगों को कायल करने की कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। और हम भी अपनी तरफ से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह हम डॉक्टर्स को भी लाएंगे कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि जब तक वैक्सीनेशन एक सबसे बड़ा एक हथियार है, वरना ये जो वबा है खुदा न खास्ता दोबारा किसी वक्त भी फूट जाएगी। अगर आपके पास वो शील्ड ना हुई, हिफाजती कोई ऐसा हथियार ना हुआ, तो इस वक्त वैक्सीनेशन ही ऐसी चीज है जिस पर कोई इसमें कोई शक व शुबा होना नहीं चाहिए। चाहे कोई किसी मजहब का ताल्लुक हो जिससे, और चाहे किसी इलाकाई तौर पे अगर वो उसका रंग जो है वो किसी भी कैफियत का हो, तो इसमें वैक्सीनेशन कोई नुकसानदेह नहीं है, इसका फायदा ही होगा। और जो क्वारंटीन के हवाले से जो एक सवाल था कि रेड लिस्ट जो बहुत से ममालिक में, शायद 33 ममालिक ऐसे हैं कि जो मुसाफिर यूके में आ रहे हैं उनको होटलों के अंदर 10 दिन के लिए अलग रहना पड़ेगा। तो उससे पहले जो एयरपोर्ट्स के अंदर जो एक माहौल होता है, यकीनन अब उसमें किसी के चेहरे पे नहीं लिखा कि ये रेड लिस्ट वाले मुल्क से आया है मुसाफिर या ये ग्रीन लिस्ट वाले हैं। तो मुसाफिर जब भी एग्जिट बाहर जाते हैं या काउंटर्स के ऊपर जाते हैं तो वो मेल मिलाप हो जाता है। तो उसको कैसे ये यकीनी बनाया जाए, इस पर भी यकीनन एक अहम सवाल था।
جس پر اقدامات کے لیے غور کیا جا رہا ہے، کیونکہ یوکے میں سمجھتا ہوں پچھلے سال میں ہی بہت سی ایسی ڈھیل دی گئی یا میں سمجھتا ہوں کہ غفلت کی گئی کہ جب یہ پینڈیمک ابھی آغاز ہی ہو رہا تھا، اٹلی میں بہت زیادہ کیسز تھے، لیکن اٹلی کے ساتھ آنا جانا اور پھر اسپین میں جو لوگ چھٹیوں کے بعد واپس آئے، تو بہت سی جو شدت آئی ہے یوکے میں وہ اسی وجہ سے آئی ہے۔ کچھ اپڈیٹ جاری ہیں، پہلے میں کال لے لوں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ڈیڈی مدر۔ مولا علی مدر، بطول سسٹرز آپ کدھر رہ گئی تھی؟ میں تو آپ کو ہم تو تلاش کرتے رہ گئے بہن۔ انکل اصل میں ہم نے ذاکری شروع کر لی ہے نا، ذاکری شروع کر لی، مصروف ہو گئی پھر آپ تو۔ انکل انکل کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ بیٹا، اور آپ تو ماشاءاللہ ہماری ریگولر کالر ہیں، آپ نے ہیلو ہی کہا تو ہم نے آپ کو پہچان لیا۔ تو قصیدہ سنائیں گی؟ جی انکل۔ چلیں موسی بھائی قصیدہ سنتے ہیں، اگلا سیگمنٹ تو ہم جاری رکھیں گے، لیکن ہماری بچیاں بہنیں بہت ریگولر کالر ہیں تو ان سے پہلے قصیدہ سنتے ہیں پھر واپس اس دنیا کے بکھیروں میں آئیں گے۔ بسم اللہ کلوریا دیوا اللہ، بسم اللہ بسم اللہ کلوریا دیوا اللہ، بیٹا چلیاں پیادا تارا رے، میں کو اصغر رے پیارا رے، میں کو اصغر رے پیارا رے، میں کو اصغر رے پیارا ماشاءاللہ نارے علی پڑھ کے لوری سنا میں جولے شیوا سیدھا علم لوا میں نارے علی پڑھ کے لوری سنا میں جولے شیوا سیدھا مجھے علم لوا میں اصغر رچرا بہتی میں تو چلا تاریاں جتنا کی میں تو اصغر رچرا بہتی میں تو چلا تاریاں جتنا کی میں تو میں کو جان پلوں کو پیارا ہے، واہ میں کو اصغر پیارا ہے، میں کو اصغر پیارا ہے، میں کو اصغر پیارا ہے، بابل حوائج ہے عادت رواج ہے، آج سکھ دیا مانو بے پتر گنا بابل حوائج ہے عادت رواج ہے، آج سکھ دیا بہرانو دیوی کنار بر تو ٹکڑا مارے دل داہے اکاڑے دروازوں دل داہے تو ٹکڑا مارے دل داہے اکاڑے دروازوں دل داہے تو ڈارے وانگو تارا ہے، میں کو اصغر دیر پیارا ہے، میں کو اصغر دیر پیارا ہے، میں کو اصغر دیر پیارا ہے، مشکل کشاد ربنا ولی رکھ دے پاوے کاتا ہے تو بھی علی لگ گئے، مشکل کشاد ربنا ولی لگ گئے پاوے کاتا ہے تو بھی علی لگ گئے، تو دین دا پل درمایا ہے نور جب نوت آیا ہے، تو دین دا پل درمایا ہے نور جب نوت آیا ہے، میرے وقت ڈالے ستارہ ہے، میں کو اصغر دیر پیارا ہے، میں کو اصغر دیر پیارا ہے، میں کو اصغر دیر پیارا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سلیمان نعرہ حیدری،
या ले जीती रहो बेटियों, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। माशाल्लाह। नाज़रीन, बतूल सिस्टर्स हमारी रेगुलर कॉलर, तो कसीदा इन्होंने पेश किया, और अब हम वापस आते हैं कुछ जो अहम इश्यूज जिस पर हम बात कर रहे हैं। आपके लिए भी टेलीफोन लाइंस ओपन है, और चलते हैं सीधा जो 19 फरवरी को इलेक्शन हुए, और सबसे ये उसमें इलेक्शनों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो 2 अफराद वहां पे कत्ल हो गए, और मुसी भाई एक जो वालिद थे मकतूल के, उनकी जो तकरीर शायद अगर आपने सुनी हो, तो बहुत ही एक ऐसी तकरीर के साथ मरियम नवाज भी खड़ी है, पूरी क्यादत खड़ी थी। तो वो साहब कह रहे थे जिनका बेटा उसमें कत्ल हुआ, शहीद हुआ, वो कह रहे थे कि मेरे 6 बेटे हैं, और अगर 6 बेटे भी नवाज शरीफ पे कुर्बान हो जाएं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक हम अफसोस ही कर सकते हैं उस वालिद साहब पे कि जिनका एक बेटा शहीद हो गया, और अपने मजीद 5 बेटे वो उस जमात पे एक पाकिस्तानी सियासत में कि जिसका, अब अगर नवाज शरीफ ही को देखें, उनके खुद के 2 बेटे वो उनके पास है लंदन में, वो खुद पाकिस्तान में जाने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जो बेचारा जो एक गुर्बत इतनी है, या इस कदर लोग परेशान हैं, तो मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं वालिद के साथ इतनी बड़ी उसके साथ ट्रेजेडी हो गई, उस पर अब तनकीद भी नहीं बनती, लेकिन मजमूई तौर पे एक ज़हनी कैफियत देख रहे हमारे यहाँ कि वो मजीद अपने आप को इस आग में झोंकने को तैयार हैं। तो इसके अलावा तो बहुत सी और बारीकियां हैं, लेकिन पहले इस पर बात करें कि वो वालिद जो साथ उनके मरियम साहिबा खड़ी हैं, उनका एक जुमला शायद चले एक वालिद अपने जज्बात में कह गया, या अमूमन हमें ये इतना पता चलता था कि वालिद कहता था जब पाकिस्तान के लिए किसी बॉर्डर पे कोई जवान शहीद होता था, वो उनके बयानात हमने जरूर सुने कि अगर मेरा बेटा और भी होता, या मैं पाकिस्तान के लिए उनको कुर्बान करता। लेकिन नवाज शरीफ, उनकी पार्टी, बल्कि किसी भी पार्टी, इसमें कोई तफरीक नहीं, एक रुकन जो है वो पीटीआई का भी गालिबन वहां पे शहीद हो गया। लेकिन मैं नहीं समझता कि इन लोगों के लिए खून तो दूर की बात, इन तमाम सियासी जमातों के लिए आम इंसान को पसीना बहाने की भी कोई जरूरत है। ये हमारी पाकिस्तानी अवाम के एक पसीने की एक बूंद जो है वो कीमती है। इनके झूठ, इनके वादे, इनकी तसल्लियां, इनकी अखलाकियात एक आम पाकिस्तानी की जूती के बराबर नहीं है। लेकिन एक बाप कह रहा है कि मेरे 6 बेटे हैं, मैं सब कुर्बान करूंगा, मेरा तो दिल दहल गया। मूसी भाई क्या कहेंगे? देखिए फारूक भाई, हम इजराय तकल्लुफ कह देते हैं कि जी शहीद हो गए। इसमें से शहीद वहीद कोई भी नहीं है। हाय हाय शहादत एक हाय। बहुत बड़ा शहादत एक बहुत बड़ा दर्जा है पेश खुदा, और उसका बड़ा इफ्तिखार है। और कुरान ने कहा कि खबरदार शहीद को मुर्दा मत कहना। तो शहादत जो है वो एक फिक्री सिलसिले के साथ होती है, खुदा के कुर्ब के साथ होती है। जाके जो है वो इश्तिहारी मुल्जिमान के ऊपर जान निछावर कर देने से शहादत नहीं होती। अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बहरहाल बाज लोगों को अपनी जंजीरों से प्यार होता है, मैं आगे इससे क्या कहूँ। और अफसोसनाक वाकया है, और अफसोस की ही बात है, किसी की जिंदगी चली गई। मगर इंसान को खुद भी सोचना चाहिए, और घर वालों को भी, और फैमिलीज को भी, सबको, कि आप जो अपने बच्चे लेकर नहीं आ रहे, जो ऐश करा रहे हैं, जिनको करोड़ों रुपए आपके दे दिए, आपके पैसा दे दिया, और आप जो है वो एक एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर वोट दे रहे हैं। आपके बच्चों के लिए मीठा पानी, साफ पानी नहीं है। आपके बच्चों के लिए जो है वो सेहत की सहूलियात मौजूद नहीं है। खुद हजरत को जरा सा पेट में दर्द होता है तो लंदन चले जाते थे। 10,000 बार आपने खुद पाकिस्तानी मीडिया से सुना होगा। तो आपके लिए तो कुछ भी नहीं है। आपके लिए ढंग की एम्बुलेंसेज नहीं है। पाकिस्तान में बाज इलाकों में जो है वो गाड़ियों की छतों के ऊपर तक मैयतें डाल के भेजी गई हैं जब धमाके वगैरह हुए। एम्बुलेंसेज नहीं थी। फायर ब्रिगेड का अमला नहीं होता, उसकी गाड़ियां खराब खड़ी होती हैं। कराची जैसे सनती शहर में फायर ब्रिगेड मौजूद नहीं है। एक ऑफिस सदर में हुआ करता था, वो भी तबाह हो गया। अब नहीं मालूम अगर खुदा न खास्ता आग लग जाए तो किस तरह से बुझाया जाएगा। ये तो आलम है। तो अब ऐसे हुक्मरानों पर, जिन्होंने आपको इस नहज में पहुंचाया, जी वहां नहीं। पर आप जाकर अगर अपने बच्चे फिदा करते हैं, तो आपकी अकल जी को ही
मतलब उस पर हैरत की जा और सकती है ये और क्या ताज्जुब किया जा वजह सकता है। है, वही बात के ये एक बहुत एक समझे कि पूरी एक बीमारी का हमें एक सिरा नजर आ रहा है कि पाकिस्तानी कौम क्यों आगे नहीं बढ़ पा रही, हम क्यों अपने मजीद बच्चे भी इन लोगों पे कुर्बान करने को तैयार हैं, ये सबसे बड़ा एक सवाल है। हम क्यों इन लोगों के लिए इतना वक्त भी नहीं, सर्व कोई कर रहे हैं, वक्त तो कोई अच्छा जान तो रास्ता बहुत हो, बड़ी बात कोई अल्लाह रसूल का है। जी रास्ता हो, कोई वही बात है, पाकिस्तान की ही मैं तरक्की मुझसे हो। एक कॉल ले लूं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, कोई हक और सच का कोई रास्ता हो, कुछ तो पता हो। नहीं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई, थोड़ा सा जी वालेकुम अस्सलाम मोहतरम। सैयद मुजाहिद सर लंदन से। जी मुजाहिद साहब शुक्रिया। सर गुजारिश ये है कि जो यमन की जंग है, जी ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है और ये कोई दो मुल्कों की जंग नहीं, इसमें बहुत सी सारी तकरीबन आलमी ताकतें इन्वॉल्व हैं। सही। तो मेरी गुजारिश ये है कि हमारी कम्युनिटी जो है ना वो उसका बहुत कुछ जो है ना वो इस जंग से वाबस्ता है। हम्म, तो मेरी एक तजवीज़ है कि यूके में जितने इदारे हैं, जितने उलमा हैं, वो एक कंसेंसस बनाएं, अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक ब्रीफिंग दें, एक मैसेज भेजें, एक अपनी ओपिनियन बना के दें कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर सऊदी की तरफ जाएगी तो ये बहुत बड़े खलफकार का बायस होगा बैरून मुल्क के अंदरून मुल्क भी। लिहाजा पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस जंग में गैर जानिबदार रहे, ताकि जो है ना वो उम्मत मुस्लिमा जंग से मजीद इस आग को न फैलाया जाए और वो कोशिश की जाए कि इसको जितना हो सकता है इसको कंटेन किया जाए। और अगर कोई अफवाह तफसील का सिलसिला बनता है तो इसमें पाकिस्तानी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट बहुत खतरनाक होगी, मैं कहना चाह रहा हूँ। सही सही। तो पाकिस्तान आर्मी वहाँ पे मौजूद है, तो हमारी तरफ से गवर्नमेंट को इन एडवांस एक ओपिनियन जानी चाहिए कि पाकिस्तान को एक जिम्मेदार स्टेट से ठीक है। अपना रोल अदा करना चाहिए। और मैं आगामी मुफ्ती साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, शायद इनको इधर नहीं है कि जो शर्ट कराने इन्होंने पहना हुआ है, ये एक कम्युनिटी के हवाले से ये रंग को अच्छा नहीं समझा जाता। मेरी रिक्वेस्ट है इससे कि ये रंग दोबारा न पहने, अगर हो सके तो इसको वक्त में इसको चेंज कर ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला बहुत शुक्रिया भाई। लीजिए भाई, मैं तो यमन से मुतालिक आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन पहले शर्ट का बता दें कि इसको कब उतार रहे हैं। भाई ने इतराज कर दिया आपके रंग को, तो मैं भाई कॉल लूं। पसंद नहीं आ रहा जी, जी कॉल हाँ, ले ले। मैं एक और कॉल ले लूं। और क्या कुछ ऐसे खदशात या कोई ऐसी खबरें हैं क्या पाकिस्तानी फौज, क्योंकि मुझे तो इसमें फिलहाल सरकारी तौर पे तो मौकफ यही है कि वो गैर जानबदार है। वैसे राहिल शरीफ साहब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे अंडरग्राउंड, ये पीछे पसे पर्दा कुछ हो रहा होगा, लेकिन सरकारी तौर पे फिलहाल पाकिस्तान मेरी जो इल्म है उसके मुताबिक तो अभी गैर जानबदार था। लेकिन मुजाहिद साहब को कुछ अपडेट्स हैं, या अगर आपके पास अपडेट्स हैं तो बताइएगा। लेकिन एक कॉल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए बहन। क्या कहूँ, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से खत्म करूँ, इतना मतलब कि जो कानून है ना, कानून पाकिस्तान का वो मकड़ी के जाले की तरह है कि जिसमें हमेशा जो है ना वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और अशरात तक फंसते हैं। सही तो जो बड़े जानवर होते हैं ना वो इस जाले में से आराम से निकल जाते हैं, सही। छोटे छोटे जो है वो फंसते हैं। अब कानून को देखेंगे, जज साहिबान जो है वो कह रहे हैं कि सियासी केस लेना जो है वो हमारे मतलब दायरा है, हमें नहीं सियासी केस लेने चाहिए। तो फिर सियासी केस कौन लेगा? वो भी बता दें कि सियासी जो मुजरिम है उनको कौन अदालत के कटहरे में खड़े करेगा और उन कौन फैसले करेगा? या तो फिर अदालतें कहें कि ये पाकिस्तान की अदालतें नहीं है, ये सियासतदानों की जेब में ये अदालतें जेब देख कर काम करती हैं और उनके हमारे जो फैसले हैं वो सियासतदानों की जेब में होते हैं। ठीक। सिर्फ डिक्लेयर करें कि हमारे फैसले जो होंगे वो इन सियासतदानों की जेबों से हम करेंगे। तो मतलब कि आप देखें कि या तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने बंद कर दें और बस ये जो
सियासतदान जो है वो जिंदाबाद रहे और सब कुछ मुर्दाबाद करे और सही, सियासतदान जिंदाबाद। वो भी सियासतदान के सही, पूरा पाकिस्तान घूम रहा है। सियासतदान जो इन्होंने गन डाला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, जो कुछ भी आज जो इतने हाई लेवल पे जो इतने बड़े बड़े ओहदे खरीदे और बेचे जा रहे हैं कि इंसान को शर्म आती है कि ये हो क्या रहा है। और कानून जो है वो खामोश है कि हम सियासी केस नहीं ले सकते। कौन लेगा केस? सही बहन। चले, पॉइंट आ गया आपका, अदलिया से मुतालिक आपका पॉइंट था कि ये जजेस क्या कर रहे हैं, अदालतों पे हमले हो रहे हैं, जज भाग रहे हैं, जज बटे हुए हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा अगर बताना चाहे मुसीब भाई, यमन से मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं ऐसी? देखिए, ऑफिशियल पाकिस्तान ने डिनाई किया था और उस पर सऊदीया के साथ ताल्लुकात भी खराब हो गए थे। वो चाह रहे थे कि ऑफिशियल जो है वो पाकिस्तान की ब्रिगेड्स वहां पर जाएं और जाके जंग लड़ें। पाकिस्तान ने कह दिया था कि भाई किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेगा, चूंकि और आपकी भी हिफाजत वो सिर्फ इस वजह से करते हैं चूंकि हरमैन शरीफैन वहां पर मौजूद हैं और खाने काबा और मस्जिद नबवी के एहतराम की वजह से सऊदीया की अर्जी सलामती की उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि पाकिस्तान की कुछ फौज सऊदीया में रहती है। मगर वो समझते हैं, वो सऊदी हुक्मरान सबको अपना नौकर समझते हैं और अपने आप को सबका आका समझते हैं और इस तरह से ट्रीट करते हैं। तो उन्होंने इसी तरह से ट्वीट करने की कोशिश की थी, मगर पाकिस्तान ने बड़ी खूबसूरती से पार्लियामेंट में बिल ला के और उससे जान छुड़ा ली थी। मगर राहिल शरीफ साहब सऊदी इत्तेहाद के जो एक मुस्लिम नेटो का नाम दिया गया था, जिसका इफ्तिताह करने डोनाल्ड ट्रंप जैसा मुफ्ती आजम आया था। डोनाल्ड ट्रंप अगर मुफ्ती आजम है तो फिर वो मुस्लिम नेटो हुई, और अगर जिसका इफ्तिताह डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है तो फिर आप समझ जाएंगे वो कितनी मुस्लिम ममालिक के लिए सूदमंद होगी। यकीनन वो मुस्लिम ममालिक पर ही आफत डालने के लिए बनाई गई थी। नाम उसको मुस्लिम इत्तेहाद दिया गया था, हालांकि उसके अंदर पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम ममालिक के पायलट उन्होंने हायर करके और यमन के ऊपर चढ़ाई की। ये सब जानते हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं। जहां तक राहिल शरीफ साहब की बात है तो हाँ, वो उस इत्तेहाद के सरबराह हैं और वो इत्तेहाद ही यमन में लड़ रहा है। मगर मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी के पीछे जाके कोई सपोर्ट कर रही है, मगर राहिल शरीफ साहब हैं, राहिल शरीफ साहब तो हैं, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। वो तो है, वो तो बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, आपको और मूसी भाई को बहुत बहुत सलाम। जी शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक शेर है फारसी का, एक लाइन सिर्फ। जी जी। बादल खुदा व इश्क मोहम्मद मुखम्मरम दर कुफ्र ई बवद व खुदा सख्त काफरम। मैं अल्लाह के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मस्त हुआ हूँ। अगर यही कुफ्र है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करना कुफ्र है, तो खुदा की कसम मैं सख्त काफिर हूँ। इसके मैंने ये बनते हैं। सही। तो एक कुरान करीम की सूरत नहल की एक लाइन है सिर्फ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, भला तुसअलुन्ना अम्मा कुंतुम तामलून। अल नहल सूरत 93 है इसकी। जो कुछ तुम करते हो उसके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। ये मैं इसलिए कि मैं आपके प्रोग्राम में काफी सालों से सवाल करता हूँ। जब मजहब की होती तो आपके साथ बैठे जानी साहब, मैं कुरान करीम से हवाले से सवाल करता हूँ। जब ये सवाल हम करते हैं तो एक बंदा आखिर पे आता है, वो अक्सर तो वो आके कह देता है जी अहमदियों को कादियानों को काफिर करा दिया था। इसलिए ये जो चीजें मैंने आपको दोनों बताई हैं, आप देखें कि उर्दगान मेरा रिश्तेदार नहीं, ना आपका ना ज़ैद या बकर का, उसका दिया हुआ हार जिस बंदे ने चोरी साबित हो गई जी, तो अगर मैं उसकी सफाई पेश करूं तो ये आयत कोट करेगी रोज क़यामत। चले ये बताएगी कि और जो कुछ तुम करते हो उसके बारे में तुमसे जरूर पूछा जाएगा। ये कुरान कहता, मैं नहीं कह रहा। सूरत नाल की 93 आयत। तो उस कॉलर को मैं कहना चाहता हूँ, अगर मजहबी बहस करनी तो आ जाओ सामने, कुरान ले आओ, मैं भी आ जाता हूँ। जो जिसको खुदा दे। फिर क्या बात, ये जो फारसी है, ये मैं जिनको मानता हूँ, ये उनकी जुबान का ये सही है। मतलब सही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। इतना प्यार करने वाला वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा, नाम उसका है मोहम्मद, दिलबर मेरा यही है। सही है। ये चीजें जो हैं, जब एक चीज किसी का दिल चीर को दिन देकर सोने के सल्लल्लाहु में समा बिन ज़ैद से जब कहा था कि तूने उसकी गर्दन उड़ा दी, क्या तूने उसका दिल चीर के देखे? कह रहे या रसूलल्लाह, उसने मुंह से डरते हुए कलमा पड़ा, इसलिए मैंने गर्दन। ये जो लोग आते हैं ऐसी बातें करने, कुल वल्लाह अहद नहीं आती। मौलाना जो है, जो सेनेटर, उसने कहा तो आज भी गलत पड़ेगा, वाकई उसने गलत ही पड़ी।
तो ये ठीक है जो भाई, कॉलर आते हैं ना हेल्प करने, ये रोज क्यामत किसको मुंह देंगे? चलें। ये किसी का मैं सर इमरान ज्यादा खान ही का साथी नहीं, फोकस हो गया ना आपका कर दिया मामला। उसने भी आकर, ठीक जिसने है, भी किया मेरे ज्यादा मुल्क का ज्यादा बेड़ा किया, खुदा ताला ज्यादा उनको दिल वो पे ले पूछेगा। गए। मेरा सवाल ये है कि आप देखें कि वो बंदा जो बीमारी की छुट्टी वहां से मंजूर करके जाके कराची में महफिल लगा लेता है बलावला उसमें, ठीक है, फरूक भाई, जी जी, और वो वहां से ले लेता है अपनी जनाब जमानत कि मैं बीमार हूँ, तो ठीक 2 है, दिन बाद फजल रहमान भी उधर इधर से लंदन से फोन जाते हैं, और वहाँ पे जो ख्वाजा साहब बताया गया था सारी जिंदगी मांग मांग के रोटियां खाई, और आज सेनेटर के लिए उसको चेयरमैन के लिए खड़ा कर रहे हैं, सही, हार बरामद हुआ, और जिससे ये चीजें जो निकलती हैं इन लोगों से, तो आप देखें कि 6 बंदे अपने पार्टी के लिए मरवाने के लिए तैयार है, खुदा और खुदा के रसूल पर नहीं कटते, ठीक, ये इसी दुनिया में जो बोझ बीज रहे हैं वही काट रहे हैं। वही काटेंगे। बिल्कुल सही अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। ज्यादा लंबी बात नहीं हो पाएगी, अभी आधा प्रोग्राम बल्कि आधा घंटे ही रह गया है। और जिस आपने फरमाया ना कि जो भी इसका मफहूम यही कि जो भी हम करते हैं उसका हिसाब लिया जाएगा। मैंने एक फरमान जो था हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का मौका नहीं मिला, लेकिन इस हमारे जो नजरियात हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो वाबस्तगियां हैं, सियासी वाबस्तगियां खास तौर पे, ये बहुत इसके ऊपर परफेक्ट है। मौला ने फरमाया कि जिसने किसी बुराई की तायद की और उस पर राजी रहा तो वो उसके गुनाह में भी शरीक है। तो एक बुराई है या कोई बुरा है, अगर हमें वो अंडरस्टूड पता है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई कातल है, तो अगर हम फिर भी उसकी तायद कर रहे हैं तो हम इसका मतलब है उसके गुनाह में शरीक हैं। ये मौला इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का फरमान है। तो या तो हम कहें कि हमें पता ही नहीं, ये भी एक झूठ होगा। तो अगर जिन जिनका भी पता लग जाए और उनका हम साथ दे रहे हैं तो ये सरासर हम अपने आप के साथ गुनाह कर रहे हैं, अपने आप के साथ एक काम खराब कर रहे हैं। एक कॉल लेके फिर मुस्लिम भाई आपके पास, और अभी वो जिन लोगों ने कुर्बानी दी और दसका में जो कुछ हुआ, और अभी भी ये मामला हल नहीं हुआ, अभी भी जमात वो जो 20 हलके हैं उस पर नून लीग की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरे हलके में दोबारा पोलिंग हो, और पीटीआई हुक्मरान जमात कह रही कि 20 हलकों में दोबारा आप पोलिंग करा लें। तो ऐसा है कि डस्का जो है वो ही पूरा एक मरकज निकाह बना हुआ है। कॉल लेने के बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अली अस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद, इश्तियाक भट्ट साहब। मोसी भाई आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम मदद। वालेकुम फारूक भाई माशाल्लाह, मोसी भाई बुजुर्गी की निशानी सामने आ गई है, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। सही है, थोड़ी थोड़ी सफेद दाढ़ी आ गई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उम्र दराज माशाल्लाह। करे मेरे भाई मोसी भाई की और आपकी। फारूक भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी बातें। जी हम मेहरबानी। आपके सब आपके प्रोग्राम से और आपकी टीवी की वसातत से हर प्रोग्राम में, वो दुनियावी हो सियासी हो, सही, हम सबक सीखते हैं और हम पढ़ते आपसे हैं भी भाई, हम इंशाल्लाह। आपसे, ये कोई आपके मुंह वाली बात नहीं है, हम हम कोई सबक सीखते आलिम हैं, हम नहीं। शागिर्द हैं और इंशाल्लाह हासिल होता है कुछ। तो एक बात आपसे शेयर करूंगा, रियासत पाकिस्तान, इसको खुदा के लिए, जी खुदा के लिए आपको अल्लाह रसूल का वास्ता है, इसको मदीना की रियासत मत हो, ठीक खुदा है, का वास्ता। ठीक अब है, सब जहाँ मेरी आवाज जाती है, सही, कल आपने देखा है सोशल मीडिया के ऊपर, मैं नाम लूंगा, फुआद चौधरी साहब, आवाज पीर खान कोई मास्क क्या पता नहीं लाहौर है कहाँ है मुझे नहीं पता, हाँ, उसके सामने जो हशर हुआ वो आपके सामने, सारी दुनिया के सामने है। खुदा के लिए, खुदा के लिए इस मुल्क को बचाओ अगर बचाना है। हम ये नहीं कहते कि हाँ हर बंदे के ऊपर अपना जो है ना दीन मसलत कर दो, नहीं, बिल्कुल, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने आपको दिया उसकी हिफाजत करो। अच्छा, ठीक है, हर किसी को जीने का हक है, हर दीन को इजाजत है, हर मजहब को। हमारा मजहब सबसे अच्छा है फारूक भाई, जो मोहब्बत बांटता है। बिल्कुल किसी सही, को कत्ल बिल्कुल करने सही, की, किसी को गालम गलौज करने की कोई कत्ल नहीं जाना, सवाए फिक्का जाफिया के ये ऐसा पाक और पाकीज़ा मजहब है। मैं यकीन माने जब से इस दर पे आया हूँ, पता नहीं मुझे अल्लाह ने इसीलिए लाया कि मुझे शऊर आ जाए, शऊर आ जाए, यकीन माने। तो एक बात बड़े दर्द दिल के साथ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो इस दौर में है, सबसे गंदी तलीम जो गवर्नमेंट है ना, इसकी गुजरी है रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करने की साजिश। मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ अच्छा था, जरदारी अच्छा था, जो मर गए, या जरनैल से अच्छे थे, लेकिन जो ये वाली ज्यादा ना, वो मेरे भाई ने कुरान की आयत पढ़ी ना, अल्लाह तो पूछेगा। मैं एक बात कहूंगा पर आपके सामने रखूंगा फारूक भाई जी, कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं था, जम्मू कश्मीर था।
सही ये दावा नहीं, ये हकीकत है। सही तो आज जिन लोगों ने हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, या हमारे दलाल जो आज बैठे हुए वो हूँ, इन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर को बेच दिया है, लेकिन हमारी शनाख्त को मिटाने की भरपूर तरीके से कोशिश की जा रही है, वो पाकिस्तान की तरफ से हो या हिंदुस्तान की तरफ से हो। मैं कितनी दफा आपसे बात कर चुका हूँ कि हमारा एक कार्ड होता था जिसको शनाख्ती कार्ड हम कहते, वहाँ आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर लिखा होता था। तो इस खान की हुकूमत में आके वो मिटा दिया गया। मैंने अभी नया बनाया, लेकिन कहाँ तक मिटाओगे? सही इंशाल्लाह हक बाकी रहता है। मैं हर मिसाल दुनिया के सामने रखता हूँ। एक तरफ 72 थे, एक तरफ लाखों थे। नमरूद भी मिट गया, शदाद भी मिट गया, फिरौन भी मिट गया, यजीद भी मिट गया, माविया भी मिट गया, उसके मानने वाले भी मिट गए, लेकिन हुसैन आज भी जिंदा है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो लोग, मेरा उन कश्मीरियों से एक पैगाम है, जो लोग ये झंडे उठा के कहते हैं कि हमें सुबह मंजूर है, इंशाल्लाह ये जज्बाती बात नहीं है। अच्छा, कश्मीरियों से आप मुखातिब, आपका हशर बलोचिस्तान से बदतर होगा। ये जो वजारतों में बैठे ना, सीटेंगे पाकिस्तान वाले इनको, ना घसीटा तो मेरा गिरबान पकड़ना फारूक भाई, आप ठीक है भाई, जिंदा रहा तो देखना कि इनका हशर उनसे बुरा होगा। चले आपकी पेशन गोई है भाई, इनसे बुरा जरूर करेगा। अल्लाह खैर करे। की रियासत को पाक परवरदिगार ऐसा कोई अजीम बंदा दे जो इस पाकिस्तान को अच्छी सिमत के लेके जाए। हम मजलूमों के साथी हैं, हम कभी भी जालिम का साथ नहीं देंगे। जरनैल हो, वजीर आजम हो, कोई वजीर, बात खत्म होगी जी। बहुत शुक्रिया इश्तियाक भट्ट साहब। सही सर। जी मुसी भाई भट्ट साहब, तो जाहिर है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और दूसरी तरफ भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो सबके लिए हमारी ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। क्या फरमाएंगे सर, ये जो बातचीत हुई कॉलर्स? पहले अहमद भाई की बात पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो अहमद भाई से मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा सीरियस ना लें, और इसमें कोई पर्सनल अटैक नहीं होते। हर आदमी अपनी राय का इजहार करता है। अगर किसी की वाबस्तगी, सियासी वाबस्तगी किसी के साथ हद से ज्यादा है, हम अपनी एक एक सांस का और एक एक अपने कहे हुए जुमले का और अपनी एक एक फिक्र का हिसाब अपने रब के सामने जवाबदेह हैं उसके, और देंगे। हर इंसान देगा। कुछ जा चुके हैं, कुछ जा रहे हैं और कुछ जाने वाले हैं। सब नहीं चले जाना है, तो इसको सीरियस ना लें। अगर कोई किसी का हमनवा है तो वो उसके साथ मैशूर होगा या उसके हिसाब से अपना जवाब देगा। आपसे उसका नहीं पूछा जाएगा, तो आप इसको जरा सीरियस ना लें, नंबर 1। और दूसरी, अगर आप समझते हैं कि वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं तो पर्सनल अटैक आप भी कर रहे हैं, आप इसको ना लें। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें। दूसरा कॉलर है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश कर रहा है, इसमें कोई तजाद नहीं होना चाहिए। जो भी पॉइंट ऑफ व्यू किसी का भी, उसको रिस्पेक्ट करें, और दलील के साथ अगर आप मुखालफत कर सकते हैं प्रूफ के साथ, ठीक है ना, तो अच्छे अंदाज से। और आपको जब एक खुला टाइम दिया जाता है तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करें, वस्सलाम। इसमें दूसरे पर क्रिटिसाइज करके इसका कोई फायदा नहीं। तो और दूसरी बात जहाँ इश्तियाक भट्ट साहब ने की, तो यकीनन पाकिस्तान के हालात जो है वो गुदरगू है नहीं या थे नहीं, लगता यह है कि रखे जाते हैं, कि इसको इस तरह से एक फॉर्मेट बनाया हुआ है कि इसको ऐसे ही रखना है, ना इससे नीचे जाने देना है, वैसे ऊपर आने देना है, ऐसे ही रखना है। इसमें लाइट भी जाती रहे, बिजली भी जाती रहे, लोग बेरोजगार भी होते रहे, कुछ अरसे के बाद थोड़ी सी लोग अपने बेटे कुर्बान करते रहे, कुर्बान करते रहे, और उस पर सियासतदानों के लिए। जी हाँ, एग्जैक्टली। मतलब अजीब बात है ना, सोचना चाहिए ना, क्या इसलिए पैदा हुए थे कि जाके मियाँ साहब के ऊपर जिंदगी हार जाए? मतलब सोचना है ना। जी हाँ, सोचना जी हाँ। चाहिए। और मियाँ साहब को अभी गैरत नहीं आई कि यहाँ पर अपने बेटों को भेज दे भाई, कि नहीं मेरे बेटे भी हाजिर हैं मेरे कॉज के लिए। देखिए दूसरे बेटे दे रहे हैं, ये तो अपने कॉज के लिए अपने बेटे या अपने आप को महफूज रखा हुआ। एक कॉल लेने के बाद इस पर बात करते हैं, ये तो एक अलग सा टॉपिक है हमारा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी नकवी साहब मोहतरम, भाई आपको भी सलाम हो। कि शेर की आमद है, अली मदद, मौला अली मदद, और मुबारकबाद पेश करता हूँ जज़ाकल्लाह इस्लाम की आमद की। जज़ाकल्लाह। और आप सब मुबारकबाद हो। बहुत शुक्रिया। अभी आपने मौला का एक कौल पढ़ा है, वो कौल मेरे सामने पढ़ा है, वो कुछ इस तरीके से है जी, कि जो किसी बदकार को उम्मीदवार बना दे या उसकी आरज़ू पूरी कर दे, उसकी सबसे मामूली छोटी सजा महरूमी है। अल्लाह। ये है मौला का कौल।
اس کی تشریح میں موسی صاحب سے پوچھوں گا، یہ اس کی بات میں تشریح کرتے ہیں. ٹھیک. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے بھائی کہ مجھے موسی صاحب یہ بتائیں کہ آٹا مل رہا ہے آپ کو، چینی مل رہی ہے آپ کو، بجلی کے بل جو ہے وہ دے سکتے ہیں آپ، ہمت ہے آپ کے اندر، صحیح. گیس مل رہی ہے. اگر یہ ساری چیزیں آپ کو مل رہی ہیں تو پھر محرومی تو نہیں ہے، پھر سب کچھ شادی ہے، پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صحیح. اور اگر یہ سب کچھ نہیں مل رہی تو پھر یہ جو آٹا چور، چینی چور، گیس چور، دوائیاں چور، چور ہی چور، چور ہی چور، اتنے زیادہ چور کیا چوروں نے اپنے میں چوروں کے یہ جنگل میں پھنس گیا اور چوروں کے جال میں کوئی پھنس گیا. چھوٹے بڑے چوروں کا فرق ہی نہیں رہا، پھر ان کی اتنے تاریخ چور. کیا کی جا سکتی ہے، کیا کی سکتی. اب تو نقاب اتر رہے جی ہیں اور پتہ چل رہا ہے. جی اب جی تو چوری کی حد یہاں تک ہو گئی بھائی جی. کہ پہلے آٹا چور، چیری چور تھے، ووٹ چور تھے، اب تو وہ اتنے بڑے چور ہو گئے ہیں کہ وہ پولنگ اسٹیشن سے عملہ ہی اٹھا کے چوری ڈبے کر لے کے لے جاتے ہیں، جاتے بندے. ہیں. اب تو چوری کی انتہا ہو گئی ہے کہ عملہ بھی غائب ہو جاتا ہے، چوری کر جاتے ہیں اب یہ، اور پھر مانتے بھی نہیں ہے. بالکل. چلو یہ تو بات آپ اس کا جواب دے پائیں گے. جی موسی بھائی آپ سے صرف یمن کے بارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جی مجھے صرف یہ بتائیں یمن کے بارے میں جی. کہ آج 5 سال ہو گئے ہیں ان بیچاروں کو، معصوم لوگوں کو مرتے ہوئے اور شہید ہوتے ہوئے، اور ان پہ جو ظلم ہو رہا ہے. جی نہ تو یو این او بولتی ہے وہاں پہ، نہ سلامتی کونسل بول رہی ہے وہاں پہ. جی. انتہا یہ ہے کہ 40 ممالک مسلمان ہیں جن کی زبانیں گونگ ہیں، اور مقابلے پہ کس کے کھڑے ہیں؟ یمن کے غریب لوگوں کے مقابلے. اور صحیح. ابھی تک ان کا ایک بال بھی بھیگا نہیں کر سکے، کچھ نہیں کر سکے. اب سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ چلو وہاں تو دوسری قوتیں جو ہیں جو غیر مذہبی ہیں وہ تو چاہتی ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمان کوئی ایک ملک بھی اگر کمزور ہو کے گر جائے تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے، جیسے انہوں نے شام اور عراق میں نقصان کیے، لیکن کر تو وہ بھی نہ کچھ سکے. لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو 40 ممالک ایک یمن کو نہیں گرا سکے تو کیا یہ مسلمانوں کی توہین نہیں ہے اس میں؟ کیا مسلمان اس میں ڈوب مرنے کا مقام نہیں مسلمانوں کا کہ جو ایک مسلمان ملک کو گرا نہیں سکے وہ غیر جو اسلامی حکومت کا کیا یہ مقابلہ نقوی صاحب 40 ہمارے. ممالک کر پائیں گے، اور ان کا کیا اثرات ہوں گے ان لوگوں پہ اور عوام پہ کہ جو 40 ممالک ایک یمن کو کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو پھر جو بڑی طاقتیں کر رہی ہیں، مخالفت کر رہی ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ صحیح ہے. ان کا کیا ہوگا؟ یہ میں نے آپ کو میں آپ سے دنیا کو دکھا رہا ہوں، میں نے کہا یہی بندہ ہے وہ جو کال کرتا ہے بار بار. جی بس میں سمجھ نہیں پایا آپ کو تصویر دکھانے کا مقصد کیا تھا آپ کا. نہیں، میں دکھا رہا ہوں کہ لوگ آپ پوچھتے ہیں کہ نقوی صاحب کون ہے، تو میں نے کہا یہ نقوی صاحب ہے ہمارے ویڈیو. نقوی صاحب اللہ کے بندے ہیں، نقوی صاحب آپ کی طرح انسان ہے. نقوی صاحب صرف اپنا ایک نظریہ رکھتے ہیں، نقوی صاحب نہ لوٹے ہیں نہ بکاؤ مال ہے، بس صرف اتنا ہے کہ جو بھی ہے کہ نظریاتی آدمی ہے، نظریہ رکھتے ہیں اور لوٹے نہیں باندھتے. نقوی صاحب میں صرف یہ ایک بات ہے، باقی آپ کی مرضی ہے جیسے اس کو لے لے. نہیں نقوی صاحب لائیو آئے کسی دن. باتوں کا ذرا جواب دینا مجھے. جی جی. صرف اتنا بتا دو کہ یہ یمن کے 40 ممالک اسلامی جو ہیں یہ کیا عزت پا رہے ہیں؟ کیا ان کا روب رہ جائے گا دنیا میں کہ یمن کو نہیں ختم کر سکے 40 ممالک تو آگے کسی ایسی دوسری قوت کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، تو ان کا کیا فوٹو ہوگی، کیا ان کی تصویر ہوگی ان کے سامنے، اور کیا ان کا روب ہوگا؟ صحیح. تھوڑی سی روشنی ڈال دے تو مہربانی. بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ سے محبت ہے. اور تو کہتے ہیں لائیو آئیں، اور آپ کو، احمد صاحب کو، اشتیاق بٹ صاحب کو، کچھ اور جو ہمارے ریگولر فالوور ہیں، کوئی پروگرام کرے ان کے ساتھ. تو جی موسی بھائی، یہ یمن سے متعلق کوئی آٹا چور، عملہ چور. نقوی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ جی وقار رہ جائے گا اور ان کی ایک بات رہ جائے گی، تو وہ پہلے تھی کب؟ کس مسلمان ملک کی اس وقت طاقت ہے، دولت ہے، ثروت ہے، ٹیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، مگر عزت اور وقار اقوام متحدہ کے سامنے نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی ضرورت کرنی چاہیے، اس کے اوپر دقیق توجہ کرنی چاہیے کہ کیوں، وجہ کیا ہے. کیونکہ مسلمان اقوام نے زیادہ تر اپنے اوپر جو حکمران منتخب کیے ہیں وہ مقامی امنگوں کے حساب سے نہیں آئے ہوئے، یا کہیں سے لا کر بٹھائے گئے ہیں، یا جو ہے وہ اب ایک عوامی نمائندگی نہیں ہے، یعنی وہ عوام کے نمائندے نہیں ہیں. اکثریت کی بات کر رہا ہوں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، اکثریت کی بات کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان ممالک کے اندر ایک تو ان ہاؤس ڈیلیور نہیں کرتے،
اور دوسرے قوموں کے لیے باعث عزت نہیں بنتے. ان کو اپنے بعض بادشاہتے ہیں تو ان کو اپنی عیاشیوں سے فرصت نہیں ہے. بعض 5-5 سال کے لیے آتے ہیں تو وہ بےچارے 5 سال ہوتے ہیں، ہر چیز وہ سوچتے ہیں سب کچھ لوٹ کے چلا جاؤں. تو وہ نہ ملک کے اندر کچھ لیور کر پاتے ہیں، نہ ملک کی عزت کے لیے کچھ کام کر پاتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی. وہ اپنا ایک سڈن ایک ہدف لے کر آئے ہوئے ہوتے ہیں. کسی کے پاس 5 سال ہوتے ہیں، کسی کے پاس ایک زندگی بھر کی بادشاہت ہوتی ہے، وہ یہ کرتے رہتے ہیں. اب آپ کے سامنے اگر مونارچیز کے اوپر جائیں، بادشاہتیں دیکھیں تو آپ کے سامنے ہے کہ چچا کو بھتیجے نے قتل کیا. ابھی آل سعود میں محمد بن سلمان نے اپنے بڑے بڑے کزنز جو کہ جن کے بعض فوٹیج میں ہے کہ جن کے پیروں کو بھی چھو رہا ہے، ان کو اٹھا کے جو ہے وہ کارٹن ہوٹل میں الٹا ٹگوا دیا اور پٹوایا، سب دولت چھین لی. تو یہ بادشاہت کے حصول میں اپنے ہی خاندان پہ جو شخص اتنا جابر بن جائے تو وہ رعایا کے لیے اور بد مقابل آنے والوں کے لیے اس کے دل کے اندر کیا کیفیت ہوگی یہ بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. تو یمن کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں تو ان کی پہلے بھی کوئی عزت تھی نہیں، نمبر 1. اور جو یہ 5 سال کا جیسے مصطفی نقوی بھائی صاحب نے ذکر یہ کیا 5 سال سے کر رہے بالکل صحیح سر. یہ تو انہوں نے ایک ایسے ہی ایک کاسمیٹک سا ایک سطحی سوال پوچھ لیا کہ آپ کو صحیح سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کا. آپ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تھر میں وہ الیکشن جیتے ہیں ابھی این اے 220 کا 220 ہاں. اس کے علاوہ سانگڑ میں وہ ضمنی الیکشن جیتے ہیں، ملیر میں وہ جیتے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ سینٹ میں وہ اکثریت لینے جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی تو بہت ہی پاپولر جماعت ہے، جو نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک نظریاتی رکن ہے اور وہ کبھی دائیں بائیں نہیں ہوئے. تو یہ سوال آپ سے بھی اور دوسرے ناظرین سے بھی نقوی صاحب کی طرف سے میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کون کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ پیپلز پارٹی اب میدان میں آنے والی ہے اور زرداری سب پہ بھاری ہوگا اور بلاول صاحب جلد وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. تو اب روک سکو بہت تو اچھی روک. بات، بہت جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. دیکھیے میری کوئی جی اس سے کوئی دشمنی تھوڑی ہے، کوئی پیپلز پارٹی سے میرا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں. بارہا کہتا رہا اس بات کو. جی لوگ جیسے آپ کے اعمال ہوں گے ویسے آپ حکمران منتخب کر کے لائیں گے. تو بسم اللہ ان کو جو ان کو لگا رہے ہیں تاکہ ان کے پاس اگر آج ایک روٹی ہے تو وہ کل اور ننگے پیر ہو جائیں گے. تو ان کی سمجھ میں آئے گی. نہ تو دیکھیں، نہ تو مجھے بھگتنا ہے نہ آپ کو بھگتنا ہے. نہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں نہ میں پاکستان میں رہتا ہوں. نیشنلٹی یقیناً پیدا ہوا ہوئے ہمارا وطن ہے، ہماری محبت زندگی بھر تک رہے گی، بڑھتے تب تک رہے گی. مگر بھگتنا اسی کو ہے جو ان کو سربراہ بنا کے لا رہا ہے. اگر وہ کہتے ہیں صحیح. پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آ رہی ہے، تو بسم اللہ آپ پر حکمرانی کرے گی. نہ فاروق صاحب پہ کرے گی نہ مجھ پہ کرے گی. تو آپ لے کر آ رہے ہیں، آپ بھگ دیں گے. تو ہمیں اس سے کچھ نہیں. ہم تو آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے، آئی اوپننگ کے لیے کہتے ہیں کہ جی آپ تھر میں اپنا حشر دیکھیں، آپ مونجو داڑو کی تہذیب دیکھیں اور آج کی تہذیب دیکھیں. کوئی فرق اگر مل جائے تو آ جائیں آن لائن آ کر. ہمیں پتا ہے کہ بھئی آپ غلط کہہ رہے تھے، آپ تو جھوٹ بولتے ہیں. وہاں تو دودھ کی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں تو بہترین ٹیکنالوجی سے آراستہ شہر ہے. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لوگ تو بیٹھ کے میڈیا میں جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں نا بھئی، آپ کے پاس اختیار ہے، آپ کے لیے پلیٹ فارم مہیا ہے اور ہم سنتے ہیں بیٹھ کے. ہم تو نہیں صحیح ہے. روکیں گے آپ کو کہ اچھا اگر آپ سچ کہہ رہے لگتا ہیں. یہ ہے ہماری کوئی مصطفی ذاتی بھائی کوئی بالکل دشمنی صحیح، نہیں. بالکل صحیح. لگتا یہ ہے کہ جو ایک ریالٹی ہے وہ ایک الگ دنیا ہے اور جو حقیقت ہے جیسے آپ بات کر رہے ہیں یہ سارا بلکہ ایک اخبار اور ایک چینل پہ حملہ ہو گیا ہے کراچی میں، بڑے چینل پہ اس کے دفاتر پہ، کہ وہاں سے ایک پروگرام نشر ہوا تھا کہ ایک ہوسٹ نے کہہ دیا، وہ کون سے بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے کہہ دیا سندھ کے بھوکے ننگے عوام. تو وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ توڑ پھوڑ ہو گئی، ہر چیز اینٹ سے اینٹ بچ گئی وہاں پہ. بھوکا ننگا تو کیا کس نے؟ بھوکا ننگا کیا کس نے؟ بس یہی بات بات یہی ہے ہے، نا، عوام وہ کی توہین نہ کریں. سوچ عوام کی نہیں رہے توہین نا. کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بتائے کہ عوام کو بھوکا ننگا اگر کسی نے کیا ہے تو کیا کیوں ہے، اپنی بات کی ایکسپلینیشن بھی ان کو دینی چاہیے نا. کسی کو ایسے نہیں کہہ دیتے. بات یہ وہ ہے، مگر اس کو سیاسی کارڈ کے طور پہ کھیلنا بھی شرمناک ہے. سوال یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر ان کو بھوکا ننگا کہا گیا تو ان کو بھوکا ننگا کیا کس نے؟ ان کے حصے کا پانی کہاں گیا؟ ان کے حصے کی کورونا کی امداد کہاں گئی؟ ان کے حصے کا گندم کہاں گیا؟ ان کے حصے کی ادویات کہاں گئی؟ حکومت کے سرکاری جو زیر اثر ہاسپٹلز ہیں اس کے اندر ادویات کہاں جاتی ہیں؟ اسکولوں کے اندر گائے بھینسیں باندھی ہوئی ہیں،
वहां पर मास्टर साहब क्यों नहीं है, वहां तालीम क्यों नहीं हो रही, वहां बच्चों के बैठने का इंतजाम क्यों नहीं है, पीने का पानी क्यों नहीं है, पूरे सेवन के अंदर एक क्लिनिक क्यों है, कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं है, जब धमाका हुआ तो लोगों के जनाजे नाले में क्यों डाल दिए। पूछने के लिए तो बहुत कुछ सही है ना। बात सही है। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, हम तो वो बात कर रहे हैं जो हम देख रहे हैं। बस यही बात है, लेकिन वो यही कहते हैं ना कि अब एक्सक्यूज इसी अंदाज से होती है कि मैं तो हूं जो भी इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन दूसरा भी तो है। ये इस अच्छा किस्म के अच्छा, अब एक्सक्यूज है, इसको अपनी सफाई सेलेक्टेड कह नहीं है। रहे थे। अच्छा, अब इसको सेलेक्टेड कह रहे थे। अब अगर बिलावल साहब सेलेक्ट करके ले आए गए तो आप क्या कहेंगे, अवामी नुमाइंदगी से आए क्या? ठीक है। पाकिस्तान के आप क्या पाकिस्तान का निजाम कोई नहीं जानता कि वहां पर बगैर जी आशीर्वाद से नकीब भाई, कौन नहीं होता? नकवी साहब बकलम हाँ खुद आए हैं। मैंने जो उनकी तर्जमानी नकवी साहब आपकी की थी, लगता है कोई कमी बेशी रह गई। आप खुद फरमाए सर, बात सही की मैंने कि गलत की? जी सरकार मैं मशहूर हूँ आपका। जी जी जी। मैं ताबियादार आदमी हूँ, एक नलायक आदमी हूँ मैं नहीं सर, आप हमारे हीरो हैं नकवी साहब, रौनक हैं। कोरोना वायरस में आपका तो मुजस्समा बनना चाहिए, आप बच गए माशाल्लाह। की बात कर रहे हैं। जी आप थर जी की बात कर रहे हैं, खुदा के लिए आप तो देख लो, थर वालों ने 50,000 की लीड दे के मुंह पे थप्पड़ मारा है। वाह जी वाह। उनके बड़े सादक और अमीर बनते थे और बड़े ही रियासत मदीना दिए फिरते थे। 50,000 की लीड तो थर वालों ने दी है पीपल पार्टी को। जी हाँ, अब ये 221 था जी। क्या चाहते हैं आप? सही है सही है। और इसके अलावा मैं सिर्फ ये कहूंगा हाँ कि जी जब पीपल पार्टी थी तो रोटी उस वक्त 3 रुपए की मिलती थी। सही है। अब जब आप हुकूमत आई है तो रोटी आप 15 रुपए की मिल रही है। तो ये यानी फर्क है वापस मेरे 3 की भाई। हो जाएगी क्या? उस दौर का फर्क है, जरा इस पे भी गौर किया करें। ठीक है। नंगे पैर थे ना, जब नंगे पैर थे, भुट्टो आया था तो उसने नंगे पांव वालों का साथ दिया था। नंगे ठीक है पांव वाले उसके साथ खड़े थे। ठीक मुझे है। आज वो वक्त याद है कि फौजी के पास मैं जूता गड़ाने के लिए गया था। हाँ हाँ तो उससे मैंने बात की, मैंने कहा यार क्या फर्क देख रहे हो आजकल तुम? कहने लगा शाह जी मैं आज ईमानदारी की बात बताऊं। मैं क्या बताओ? वो कहने लगा मैं हमेशा हमारा सर नीचे होता था जूता गाड़ते हुए और पैसे देते सर। आज मैं सर उठा के बात करता हूँ और मेरे साथ तो बात नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं अपना हक मांग रहा हूँ और मेरे पीछे हक जाके देने वाले खड़े हैं। ये है पीपल पार्टी। लेकिन भूले ना इस बात को मेरे भाई, बात सिर्फ इतनी है कि आज जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कुर्सी पे है उसको सलाम, ये हमारा वतीरा बन चुका है। सही। लेकिन पिछली बातों का ना बोले, पीपल पार्टी ने जो दौर गुजारा है उसमें आप लोगों को खाना भी मिलता था, इज्जत भी थी आपकी मकबूल। आज तो सफेद कालर वालों का पेट नंगा करके रख दिया है। आज सही तो सफेद कालर सही वाले रो सही। रहे हैं सबसे ज्यादा। बिल्कुल सही नकवी साहब, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। यानी वो फार्मूला के खाते थे तो लगाते भी थे, ये सिंध में भी होता था, लेकिन यहाँ पे ये इनकी समझ नहीं आ नहीं रही नहीं, देखिए क्या कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने लाहौर पे भट्ट साहब होल्ड कीजिए। लगाया। जी जी जी, मैं भट्ट साहब को नवाज भी ले शरीफ लूं। ने, हाँ ले बिल्कुल ले भट्ट लें। साहब को भी ले। जी जी भट्ट साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं सलाम करता हूँ आपको। आप क्यों कर जनाब, रहे हैं? नहीं नहीं, आप सर हमारे बड़े हैं, सलाम आपको है। चलिए शुक्रिया आपकी, नवाजिश आपकी। तो बात यह है कि हम पार्टियों में पड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी में, मुस्लिम लीग में और तरीके इंसाफ में और इधर उधर दूसरी छोटी मोटी पार्टियां, मोदी पार्टियां, सही। इनमें हमें कुछ हासिल नहीं होगा। असल बात जो है लेकिन भट्ट साहब, एक आप कह रहे हैं कुछ हासिल नहीं होगा, एक वालिद का एक बेटा कत्ल हो जाता है पार्टी की नून लीग के वो इलेक्शन खून खराबे में, वो कहता है 5 बेटे मैं और कुर्बान करने को तैयार हूं। तो लोग तो इस हद तक अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं कर रहे। ये पता क्या है जी साहब भाई, आप साथ इलम है और साथ सब समझते हैं हर बात को कि जी ये जो ना ये बीमारी है हम लोगों में, पाकिस्तानियों में, बल्कि ये जुनून की हद तक ये सिलसिला है कि ये कौन सा कोई जहाद है, ये कौन सा कोई रूहानी मामला है जंग लगा हुआ था। 4 और कुर्बान करूंगा, 5 और कुर्बान कर दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ जब कामयाब हो जाएंगे, 4 कुर्बान हो जाएंगे, क्या मिलेगा उनको, मुझे ये बताइएगा आप। सही थोड़ा सा सही सही, कुछ भी नहीं सर, नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो अगर को आला बाकरदार हमारा लीडर है तो वो ऐसी स्कीम बनाएगा मुल्क में, वतन अवाम के लिए, अवाम नास के लिए, कि जो उनको जो गुर्बत से उनको छुटकारा मिलेगा। अभी तो वतन अजीज में अनकरीब
देखिए बात से बात निकलती है मखलूक भाई, जी जी मैं सलाम नहीं किया उनको, अपना आगा साहब को उनको सलामत करता हूँ। पहुंच तो गया वतन अजीज में अनकरीब दीवाने बाला सा जो इंतखाबात आपने छोटे देख लिए ना, जिमनी इंतखाबात में दो खानदान बर्बाद हुए हैं दोनों तरफ से जी हाँ जी ये है, ये इंतखाबात है या जंग है ये सही बताइए। सही बात है, एक जालत है, अफसोस का मकाम है। बट साहब बहुत शुक्रिया। और कल कला कोई पता नहीं, अब आगे चल के ये दोबारा इनका इत्तेहाद हो जाता है। वही सेनेट इलेक्शन थे, यही संजरानी साहब थे, पीपल्स पार्टी और मेरी एक पीटीआई ने चीज समझ एक में नहीं साथ आती, मिलके ये इलेक्शन लड़ा था। मेरी एक जी चीज जी मुस्लिम भाई, मेरी एक चीज समझ में नहीं आती फारूक भाई, जब जी भी हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं भुट्टो साहब का रेफरेंस क्यों दिया जाता है? ठीक है, भुट्टो साहब का दौर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, खत्म। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के अदवार गुजरे, उनको जेर बहस जेर सवाल क्यों नहीं लेकर आया जाता? मेरा वो सवाल यही सवाल है। लाने के काबिल ही नहीं है ना सर। आगे चोरी वही चकारी वही डाकू वही तो बात है ना। राजनी भुट्टो साहब के बाद चाइना कटिंग। भुट्टो साहब के बाद से जी हाँ भुट्टो साहब के बाद से उनको जब बेमाना तौर पर तशद्दुद करके किस तरह से उनको शहीद किया गया, उसके बाद जो पीपल्स पार्टी ने सही हुकूमतें की हैं, उसमें क्या डिलीवर किया? मैं तो ये बात कह रहा हूँ ना। ना तो मैं भुट्टो ठीक साहब के खिलाफ हूँ, ना मुझे पीपल्स जी हाँ पार्टी जी से हाँ कुछ है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई आज तक आपके जो शहर है डेवलप क्यों नहीं हुए? नजरिया बेशक बहुत अच्छा होगा, नंगे पैर लोगों के साथ खड़े थे, सब कुछ था, डिलीवर क्या किया? चले भुट्टो के सही दौर की बात ही छोड़ देते ना। उसके बाद मैं वो पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर अब उसको ले तीन जाया आदमी जाए खींच के कि भुट्टो साहब का नजरिया सर, ये था, डिलीवर तो वो दूर की ये गलत बात बात रहेगी मुसीब भाई, डिलीवर तो दूर की बात रहेगी। वो मुसवदा जिस पर बेनजीर भुट्टो ने साइन किए थे, मिसाक जमहूरियत शिक नंबर 23 के शो ऑफ हैंड से इलेक्शन होंगे सेनेट के। आप अपनी कायद का तो एहतराम कर लें सर, मेरी आपकी बात दूर की बात रह गई है। मैं कॉल ले लूं कि जो बेनजीर के नाम के वोट मिल जाए वो बहुत अच्छी बात है, हमारी शहीद रानी, हमारा ये सब कुछ। लेकिन बेनजीर क्या चाहती थी वो अलग बात है। वो बस कौन सा कोई कुरान हदीस थी। तो ये हमारे यहाँ सियासत है, सब जैसे कहते हैं ना आवे कावे बिगड़ा है। मैं कॉल ले लूं फिर इख्ताम की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूक नजर साहब, जनाब अली मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन भाई, कहाँ से? मैं नजम गिलानी बात कर रहा हूँ कैंसर। जी गिलानी साहब, थोड़ा सा ऊंचा बोल दें प्लीज। जी जी नजम गिलानी जी बात। जी बिस्मिल्लाह, क्या फरमाएंगे? मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूंगा, जी जो आप मौजूदा पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, जी तो बस इसको छोड़ ही दें। ये तो मेरा ख्याल है बात करने के काबिल ही नहीं नहीं, है। आप गिलानी होके कह रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी, अभी वो उनकी चर्चे हैं, आपका बरादरी भाई है वो, तो आप क्यों कह रहे हैं छोड़ दो? यूसुफ रजा गिलानी की एक अपनी सियासी हैसियत है, उनकी अपनी एक मजबूरी है, वो पीपल्स पार्टी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है इसलिए कि फिलहाल जी जी मैं फिलहाल इसलिए बात कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि ये आप माजी में देख लें, माजी में वो पीपल्स पार्टी के अलावा भी पहले किसी और जिया जमात में साहब के वोट, साथ थे। जी हाँ ठीक है। जी, उनके वालिद साहब। हाँ जी, तो फिलहाल उनकी मेरे ख्याल में ना मुस्लिम लीग में गुंजाइश है, ठीक है, ना अच्छा ना उनकी कोई गुंजाइश है। ठीक है तो पीपल्स पार्टी फिलहाल उनकी मजबूरी है, ठीक है। और वो एक और कोई ऐसी खास वजह गिलानी साहब, आप क्योंकि टाइम थोड़ा है, और कोई खास वजह कि पीपल्स पार्टी को छोड़ ही दें जो आपने चले बगैर अब बहस को मजीद नहीं फैलाते मैं इसी पर ज्यादा बहस नहीं करूंगा, बस मैं सिर्फ मुख्तसर सी बात करूंगा जी कि ये बात करते हैं। अभी इलेक्शन भी इन्होंने जीता है, तो जरदारी साहब ने कहा है कि जी भुट्टो के नाम पे वोट पड़ा। जी भाई भुट्टो इस दुनिया से चला गया और भुट्टो की पीपल्स पार्टी भी खत्म होगी, ठीक है तो ये जरदारी की पीपल्स पार्टी है, ठीक है, ठीक है और बिलावल जरदारी की ये पार्टी है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता वो भुट्टो का जाम जो है ना, इनकी हरकतों से खत्म हो जाएगा। सही, और ये बस चलें आगे आप खुद बेहतर समझते हैं। चलें सर, तो बड़ी लंबी हो सकती है। चलें आइंदा किसी प्रोग्राम में आइएगा इसी वक्त पे, या मुसीब भाई फोकस लाएंगे इंशाल्लाह। जी सर, तो गिलानी साहब ने भी, नजम गिलानी साहब शायद पहली बार हमारे प्रोग्राम में आए, तो 100% जो जी हाँ 100% दुरुस्त बात, हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात की। जैसे वो कायदे आजम वाली मुस्लिम लीग नहीं रही,
लाम मीम मुस्लिम लीग कोई नून नहीं कर जीम रही। काफ ये कई आ गए। तो उसी तरह भुट्टो साहब का नाम तो कैश कोई कराता है, लेकिन भुट्टो का वो नजरिया, वो नारे, वो जो एक उस पर फोकस कहाँ था, बात होती है, उस पर कहाँ बात होती है, कौन बल्कि अवामी अब तो लीडर कौन है? पीटीआई, वो 22 साल वाली पीटीआई भी नहीं रही। जैसे 18 अगस्त वो हल्फ लिया इमरान खान ने, इमरान खान का भी पता नहीं वो यादाश्त ही चली गई है, क्या होगा, नहीं, बस कौन ठीक करेगा। शायद पहली और आखिरी हुकूमत ही रही, फिर अब तो खैर जी कोई हाँ, वोट नहीं देगा उनको भी, जो उन्होंने जिस तरह से यू टर्न लिए हैं। बहरहाल अपने बिल्कुल लिए, सही, अपने बिल्कुल सियासत सही। में बाप बंद किया है, किसी दूसरे का क्या नुकसान किया है। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, हम्म, और जिस हम्म, तरह से उम्मीदों को उन्होंने पामाल किया है, बिल्डोज किया है, मैं कहूँगा रौंदा है, तो अब तो कोई बाशऊर आदमी, हाँ, मगर पाकिस्तान में बाज लोगों से कोई बईद नहीं, जब थर वाले वोट दे सकते हैं तो इनको भी दे सकते हैं। जी बिल्कुल मुआवजात होते सर, रहते बिल्कुल। वही ना, अफसोस को यही है ना कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इलेक्शन का, इलेक्शन प्रोसेस है, सियासी जमातें हैं, वहां हैं। पर हाँ, वही लोग आगे कामयाब होते हैं कि जो मैं एक बात एक कह उसी रहा था कि सिर्फ जो, माफिया का हिस्सा है। जी जी। जी हाँ, सेलेक्टेड के ऊपर जब कॉल आ गई थी, बात रह गई हाँ, थी, मैं बात ये कह रहा था कि क्या सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो पीएम आता है वो किसकी मर्जी से आता है? तो सही। खाली ये सेलेक्टेड का लफ्ज इमरान खान के लिए नहीं इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में सब आते ही बैकडोर पहले बात तय हो जाती है, उसके बाद फिर इंतखाबात को वो रख दिया जाता है, अवामी तौर पर दिखाया जाता है कि हाँ जी अब यही भारी अक्सरियत से आ रहा है। तय होता है कि भाई अब ये आएगा, इसके बाद तुम बिल्कुल आओगे और सर। उसके बाद तुम आओगे। और मुफी इसी भाई, तरह ये जैसे आपने बताया ना, तय होता है, और इस तय में हमें ये पता चलेगा 3 मार्च जो है बड़ा अहम टाइम है आगे का। हमें जो है ना पेशन गोई हम कर सकेंगे, क्योंकि लास्ट जब नवाज शरीफ साहब जाने वाले थे उनसे पहले सेनेट इलेक्शन थे, और उसमें बलूचिस्तान से ये संजरानी साहब आए और मियां साहब जो है उनकी सेनेट में अक्सरियत कम की गई। तो आज भी इमरान खान पिशावर गए हैं तो बताया जाता है 14 अरकान असेंबली जो है, एक तो वो खुद हारे हैं जिमनी इलेक्शन वहां पे, और उसके अलावा फिर 14 एमएनए एमपी वहां पे थे ही नहीं इमरान खान के। तो अब हाँ, 3 तो वो मार्च को पता हटाना शुरू चलेगा कर दिया ना, कि अगर काम शुरू गिलानी हो गया, साहब जीत जाते। जी हाँ, काम शुरू है, कोई काम काम जिसे शुरू हो कहते गया। हैं ना, सड़क पे लिखा होता है कि आहिस्ता चले आगे काम जारी है, तो ये कोई काम अब वो जारी है, इसका पता पैरों उसी के वक्त नीचे चलेगा से जब। जमीन जी हाँ, पैरों के जी हाँ, नीचे से जमीन खिसकना शुरू हो गई, अब वो एकदम सही खिंच बात, जाएगी। सही बात। हाँ, तो ये कुछ 3 मार्च बड़ा क्रिटिकल टाइम है कि आगे अब सोचने वाले क्या सोच रहे हैं कि खान साहब को जो है वो किस तरह से अब, जिसे नहीं, पंजाबी में कहते हैं, मगरू लाना है। हम तो जी, हम तो उस दिन खुश होंगे, पाकिस्तान को कोई डिलीवर करके देगा, पाकिस्तान के अवाम वो फिलहाल नहीं, जो जो लोग रह रहे हैं वो खुशहाल होंगे, वो तो हम भी फिलहाल नहीं। खुशहाल होंगे। जी हाँ, बस हमें और पाकिस्तान इस किसी की वक्त ज़्यादा किसी नहीं। का है नहीं सर। पाकिस्तान तो पीछे रह गया, बदनाम का पाकिस्तान है, कायद आजम की तस्वीर लगा ली है, किसी की तरजीह खुद, बस अफसोस है कि पाकिस्तान नहीं है। उसी वही टाइम खत्म हो गया, और बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया। कल आप लाएंगे द फोकस लाएंगे नाज़रीन, और आज कल पीएसएल शुरू है, तो इसमें भी कल का प्रोग्राम, और फिर कुछ बात करेंगे वैक्सीनेशन, हमारी कौम या